हाँ, मुझे अपना ये बताएं कि आपको पिक्चर्स में कौन सी बातें इंडिया से सिमिलर लगी? First of all, I didn't knew that I feel like because I had this thing in my mind that like it actually changed during the due course of time. Initially, I used to think that Afghanistan, Pakistan is pretty much same. As like there's no good things over there. Like the roads are not proper, and it's like a गांव आप समझते हैं कि आप समझते हम अभी भी गार में रहते हैं पाकिस्तान में? नहीं, पाकिस्तान में मैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है. That's what I'm saying. I had some like एक होता ना एक imaginary थी image कि मेरे दिमाग में ये थी. Then one of our relative he actually visited Islamabad and he told me, dude, do you know what, like Islamabad is a city which is like, we don't have any city in comparison to Islamabad in India. It's like one of the European cities you will see in actually in Asia. It's very well made. I got really impressed. I said, okay, why not? That's like, this is something that's good here. I actually heard about Pakistan. The second thing he told me about Lahore, he said it's pretty much like Delhi. It's like, it's very same. You will not find much difference in it. So gradually it actually changed because initially I had a very, very funny and imaginary, very ajeeb sa mera tha ki it's like a third world country, though India is not that developed, but yes, I never used to like feel like it's like a आपको मजे की बात बताऊं एक मोहित, जो इंडिया में पॉवर्टी ज्यादा है पाकिस्तान से, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है ना. हाँ, जितने बच्चे आपको सड़कों पे इंडिया में सोते हुए मिलते हैं ना, पाकिस्तान में नहीं मिलते. हमारे अंदर भी बहुत पॉवर्टी है, लेकिन मेरे ख्याल पॉपुलेशन कम होने की वजह से भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है. लेकिन जिस तरह ये जैसे स्लम डॉग मिलेनियर जब मैंने देखी है ना, तो उसमें जिस तरह मैंने इलाके देखे, पाकिस्तान में ऐसा कोई इलाका नहीं है. लेकिन अगर है तो मैंने देखा नहीं है. मतलब लेकिन पता है हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारा प्रॉब्लम, एक तो इकोनॉमी इंडिया की बहुत बेहतर है हमसे अब. मतलब इकोनॉमी आपके रुपया जो है वो हमारे रुपए से डबल उसकी हो गई है वैल्यू. तो आपकी इकोनॉमी, you know what, before I think 30 years back your currency was stronger than ours. हाँ, हमारा डबल था, अब आपका डबल हो गया. इकोनॉमी आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो इंडिया ने तरक्की की है, आपकी फिल्म इंडस्ट्री, वो भी तो एक तरह से, मैं तो उसको भी बहुत ज्यादा तरक्की उसमें देखती हूँ. किसी भी शोबे में तरक्की हो, वो तरक्की होती है आपकी. मैं ख्याल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत बेहतर है हमसे. टेररिज्म जो है ना वो हमें लेके बैठ गया. टूरिस्ट आते हैं आपके मुल्क में, टूरिस्ट आते हैं बहुत ज्यादा. हमारे मुल्क में अब ये जो टूरिस्ट बिल्कुल नहीं आते, क्योंकि हमारे मुल्क में टेररिज्म की वजह से. आपको पता है कि जो टूरिज्म की जो इंडस्ट्री है, इसको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए, तो इससे तो जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं वो बहुत ज्यादा पैसा अपने साथ लेके आते हैं और आपके मुल्क को तरक्की होती है. वो हमारी बिल्कुल खत्म हो गई है, लेकिन बिल्कुल खत्म हो गई है. इतने कम फॉरेनर्स हमें नजर आते हैं, लेकिन मुझे पता है यहाँ कितने अमेरिकन इंडिया जाते हैं जस्ट इंडिया देखने के शौक में, क्योंकि इंडिया का कल्चर इतना डिफरेंट. If you know, Goa is one of the best destination in the world if you want to visit for the New Year's. So if you go to Goa is like one of the place in India. So if you go to that place at the time of New Year, you will find more foreigners than Indians over there. It's one of the famous places in India and in the world. And I feel like still I feel like this is my again whatever views which I feel about both the places are totally mine, but I still feel India has to do a lot to attract tourism in India, because still we have to do a lot, because I see people coming to India, but lot many people don't go by as like the experience is very different. So I think tourism is something which every country should work upon. And though because whenever I see a competition, I don't see Pakistan as a competition, because I know it's like you will not find it good, but we have to compete with the world. इंडिया जो है वो ये भी कह रहे हैं कि वो सुपर पावर बनने के लिए की रोड पे है. वो उसकी इकोनॉमी की वजह से कह रहे हैं कि चाइना की तरह इंडिया की इकोनॉमी बहुत बेहतर हो रही है. लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जैसे जो रोड्स हो गई, स्कूल्स हो गए, शॉप्स हो गई, ये सारा कुछ मैंने देखा है कि पाकिस्तान में भी बहुत डेवलप है. मैं गई हूँ, सड़कें जगह जगह साफ सुथरी सड़कें बन गई हैं. गाड़ियां बहुत ज्यादा सड़कों पे. ये जो बैंक वगैरह है वो गाड़ियां दे देते हैं लोन पे, तो ऑलमोस्ट हर किसी के पास गाड़ी है. फिर ये कि ये जो इंटरनेशनल कंपनीज है, मैकडॉनल्ड्स, KFC, इन लोगों ने वहाँ भी जगह जगह खोली है अपने, जैसे इंडिया में. But you know what, Bajya, I feel opening chains of restaurants and probably, of course, improving the roads is one of the good thing, but this actually does not reflect a good side of a country, because there's lot many other factors.
No, no, you're right. नहीं, but this is all part of development, right? ये सारा किसी मुल्क में जिसमें खाने के लिए जगह ना हो, मॉल्स ना हो, अच्छी सड़कें ना हो, वो तो गरीब मुल्क होता है ना. लेकिन अगर किसी मुल्क में हाँ, लोगों की सड़कें साफ सुथरी हैं, जो लोग यूज कर सकते हैं, शॉपिंग मॉल्स अच्छे हैं, साफ सुथरे हैं, इसका मतलब है कि बिजनेस जो है वो वहाँ पे तरक्की कर रहा है, मतलब बिजनेस फ्लरिश करता है ना इस तरह. और ये जो जितने भी ये फूड चेन्स खुलती हैं, फूड रेस्टोरेंट्स की जो चेन्स होती हैं, इससे लोगों को जॉब्स मिलती है, इकोनॉमी बेहतर होती है. ठीक है, जो भी नया बिजनेस खुलेगा उससे बहुत सारी जॉब्स मिलती हैं. मैं वहां आज इस दफा मैं पाकिस्तान गई हूँ, तो मैं होटल में रही हूँ एक में, तो मैंने देखा कि कितने लोगों को जॉब मिली है उस एक होटल खुलने की वजह से. तो ये सारी चीजें शो कराती हैं ना. इसी तरह जो दुकानें हैं, जितनी ज्यादा दुकानें होंगी उसका मतलब है कि आपकी वही बिजनेसेस जो हैं वो तरक्की करें. तो ये सारा इसी तरह मतलब छोटे शहरों में, मैंने हर गांव में इंटरनेट है, हर गांव में बिजली है. अब ये सारी बातें भी हैं. बिजली आती नहीं है, लेकिन ये कि लोड शेडिंग बहुत होती है. I feel it's pretty much same here as well. As in the big cities are doing well, but यहाँ पे growth हो रही है, pockets में growth हो रही है. As in, I would still say that कि the whole India is not actually growing at the pace it should have been. But yes, things are improving. That's what I've seen in last 15 or 10 years. हमारा जो है ना, हमारे जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, एक तो टेररिज्म है, दूसरा ये जो इंडिया के खिलाफ हेट्रेड है ना, कि खुद ही दुश्मन उनको समझना, क्रिएट करा हुआ है. और दुश्मन समझते जाना. तीसरा ये कि जो अपने आप को मुसलमान पहले समझना, और इंस्पायर ऑफ नोइंग के दुनिया के मुसलमान हमें ना हैसियत देते हैं, कोई अरब ना हमें वो कुछ समझते हैं, ना ही मुस्लिम उम्मा कभी इकट्ठी हुई है. इसके बावजूद लोग जो अपने आप को मुसलमान पहले समझना और डिस्क्रिमिनेट करना दूसरे रिलीजन्स को, ये हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. और इसी की वजह से फिर वो जो अप्रेशन आ जाती है औरतों की, और सारी खैर वो बहुत कम हो रहा है. मैंने देखा अब इतनी ज्यादा औरतें बाहर काम कर रही हैं. पता है क्या, टेक्नोलॉजी की वजह से जितनी भी कोशिश करेंगे, जैसे वो एक टीवी पे कह रहे थे हमारे जर्नलिस्ट हैं कि टेक्नोलॉजी का तूफान ऐसा है कि जितनी भी आप कोशिश करेंगे ना, ज्यादा हमें जैसे जो मर्जी करते रहें, अब इस तूफान के आगे कुछ रुकने वाला नहीं है. जब लोगों को नजर आता है कि ये खवातीन घरों से निकली हैं, इनका स्टेटस बेहतर हुआ है, इनकी फैमिली का स्टेटस बेहतर हुआ है, कोई बुरी बात नहीं है, फिर लोग खुद चेंज होते हैं. लोग अपनी बेटियों को, अब हर बंदा, इवन मेरा ड्राइवर जो वहाँ पे था, उसने अपनी बेटी को स्कूल में भेजा हुआ है, प्राइवेट स्कूल में बेटी को भेजा है, बड़े बेटे को बल्कि उसने गवर्नमेंट के स्कूल में भेजा था, अब उसकी बेटी प्राइवेट स्कूल में जा रही है. तो हर बंदा बेटियों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान में भी. लेकिन टेररिज्म हमारा एक और मेजर प्रॉब्लम है. हाँ, which is really good. Actually, listening to you, I went to this website wherein there is a tweet written about Bilal Bhutto Zardari. It says, my mother once said that there is a little bit of India in every Pakistani and a little bit of Pakistan in every Indian. I think I completely agree to this point because it's like very same, because if we see before partition we were actually a one country, so we will not say that we were different, right? Of course there were religious difference which still exists in India. Religious differences hai, actually I feel that exists all across the globe. वो रहेंगे ही, because if I'm following a certain faith and you're following another faith, वो differences रहे, but that should not actually come into your day to day living. और ये कि आपको खासतौर पे चर्च और स्टेट जो है ना, या जो मॉस्क और स्टेट है, या जो मंदिर और स्टेट है, इन सबको सेपरेट होना चाहिए, ताकि लोग अपने घरों में अपने जो भी रिलीजन प्रैक्टिस करें, लेकिन आपका कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर हो, ताकि आप अपना सारी माइनॉरिटीज को इक्वल राइट्स देना. I think is it true? I went to Dubai recently and I wasn't allowed in the mosque. As in, like, I can go to few selected mosques, but there were not many mosques over there. I was not allowed. मॉस्क में नहीं जाने देते आपको. सऊदी अरेबिया में तो मॉस्क बनाने की भी में कोई मंदिर वगैरह बनाने की भी इजाजत नहीं है ना. बात ये कि मुझे तो ये बात समझ आती है, लेकिन गैर मुस्लिम को अगर आप बताएंगे ना, तो उन लोगों को ये होता है कि आप फिर हमारे मुल्क, जैसे अमेरिकन को ये बताएं तो वो कहते हैं हमारे मुल्क में आके मस्जिदें क्यों बनाई हैं अगर हम तुम्हारे मुल्क में आके अपना चर्च नहीं बना सकते. तो ये बात जो है ना, लेकिन मुसलमानों की ब्रेन वॉशिंग ऐसी है कि उनको ये बताएं, ये कॉन्सेप्ट समझना कि जिस तरह हम अपने मजहब को सच्चा समझते हैं, बाकी लोग भी अपने मजहब को सच्चा समझते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझना एक पाकिस्तानी माइंड के लिए जो कम्प्लीटली थोरली ब्रेन वॉश्ड है, आसान नहीं है. उनको वो है, कहते हैं ये कैसे पॉसिबल है, ज़ाहिर है हम से ही है.
आई मीन ये कैसे पॉसिबल है? ये तो बस चर्च क्यों बनने दें या मंदिर क्यों बनने दें? हम तो आग में जलेंगे अगर हमने ये किया। लेकिन उनको ये नहीं समझ आती कि जो बाकी लोग हैं वो भी इतना ही अपने मजहब को सही समझते हैं। अगर आपको अपना मजहब प्रैक्टिस करने की और प्रीच करने की आजादी है, उनको भी आजादी हो, ये बात उनको नहीं समझ आती ना। अच्छा, ये